and will tell you about the brief major guidelines, facilities and other activities which will be provided to you in the coming 5 years. Believe in yourself and the world will be at your feet. On this note, let us start with the key pillars of this CPJ family who are working day and night for the growth of our institution. Shri Subhash Chandra Jain, our chairman of the college. Shri Subhash Chandra Jain is a gracious social worker and educationalist with more than 45 years of experience in the paper industry. He is alumni of Sri Ram College of Commerce, Delhi University. Dr. Abhishek Jain, our General Secretary. He is a young dynamic entrepreneur. He is a guiding force towards the major policy decisions addressed to various issues of the college. He is constantly involved in bringing about innovative changes in the governance and functioning of the college management. Mr. Yugang Trivedi, the Director General of the college, whom we call our YC Sir. Sir is a postgraduate in economics from the Delhi School of Economics. Sir has over 28 years of experience in corporate sector. His association with CPJ College as Director General is bringing diverse exposure with respect to personality development, mock interviews and getting geared up for the placements in the corporate world. Sir is also heading the Genesis, the college body responsible for various activities through its well-defined cell to develop the skills in students and nurture them to gain professionalism. Professor V.P. Mola, the Director Academics. Sir did his MTech in 1971 and joined the Elite Border Security Force, from where he superannuated as Deputy Inspector General in the year 2006. He has been awarded police medals by Honorable President of India. He has also worked as OSD to the Vice Chancellor of IB University. Professor Dr. K.B. Asthana, the in charge academic visit. Sir did his LLB, LLM and PhD from various reputed universities. He has written 2 books and many chapters in different edited books. His more than 50 articles are published in different national and international journals and conference proceedings. Mr. Amit Bhardwaj, the in charge industrial visit. Sir has more than 12 years of experience in research and teaching in computer science, IT field. He has done his BSc from B.R. Ambedkar University, MCA from Punjab Technical University, MPhil in computer science from VM University. Coming forward to our Head of Departments of School of Law, Ms. Shalini Tyagi is the HOD of BA LLB Honours and Coordinator of Moot Court Society. Ms. Jyoti Narayan Gupta is the Head of Department of BBA LLB Honours. Academic Coordinators of School of Law is Ms. Preeti Goyal is the Academic Coordinator of BA LLB Honours and Ms. Sunita Sharma is the Academic Coordinator of BBA LLB Honours. Mr. Praveen Malik is the in charge of placement and internship. He has completed his LLB from Campus Law Center, University of Delhi. He did his LLM from Kurukshetra University. He is also NET qualified. He has litigation experience of 7 years in civil as well as criminal proceedings. Mr. Naveen Jaspal is in charge of sports. He has completed his BA LLB Honours from MD Eurota and completed his LLM from Kurukshetra University. He has litigation experience of 7 years in civil as well as criminal proceedings. Coming towards the Training and Placement Department of School of Law, Mr. Vivek Tripathi is the Training and Placement Officer of BA LLB Honours and Mr. Raman is the Training and Placement Officer of BBA LLB Honours. Event in charge of School of Law, Ms. Ayushi Jain is the event in charge of BA LLB Honours and Ms. Stuti Narula is the event in charge of BBA LLB Honours. Coming to the teaching pedagogy, so your course curriculum will be studied. You will be studying your course curriculum in 4 categories, that is student development programs, in which you will
have seminar, workshop, conferences, debate sessions, etc. Then we have classroom teaching, in which we have weekly tests, case studies, PowerPoint presentations. We have social networking, in which we'll be having blogs, classroom chats, Google groups, and the most important one is professional training, in which we'll be having moot court visits, internships, case laws, client counseling sessions, judgment writing, etc. Coming on the infrastructure of the college is situated in its own sprawling 1-acre campus in Narela, Delhi. It has spacious air-conditioned lecture rooms, seminar halls, moot courts, CCD, cafeteria, and other essential academic infrastructural facilities as per GGSIB norms. College is also providing transport facility, as we know that students need to commute from different areas of the city to the college, and hence the college has tried to cover the entire Delhi and NCR region. We have 7 routes. In case anybody wants to avail the transport facility, kindly contact your class coordinators or the transport department. Now, I would like to draw your attention on major guidelines for students. Students are required to have a minimum of 75% of attendance in all subjects covered in the semester. Under any circumstances, a student shall not be allowed to appear in the internal examination if he or she has less than 75% of attendance in all the subjects or papers. Students are required to attend the seminars, workshops, guest lectures which are mandatory for them. Regular PTMs are conducted on a periodic basis about their parents and guardians about their wards, academic as well as behavioral performance. PSDA is the integral component of each subject which consists of 15 marks. The objective of PSDA activity is to develop a synthesis between theoretical and practical aspects of respective paper, which would lead to a better understanding of the paper. Coming to the exam policy, a student will be promoted to the next academic year only if such student has obtained at least 50% of the total credits of the existing academic year for the promotion to the next academic year. Distribution of weightage for various components of evaluation will be as follows. So we will be having 2 examinations. One is internal examination, which will be conducted in-house, and the weightage is 25%. Further demarcation is 10 marks for internal exam and 15 marks for PSDA. The second is annual end-term examination, which will be for 75%. The passing marks as the percentage of total marks, that is sum of both the teacher's continuous evaluation and end-term examination, shall not be less than 40% for the batches 2016-17 onwards. Now coming on to the library rules and regulations. For membership, the students have to apply for the membership on the prescribed application form available in the library on request. The working hours of the library are as follows. The general working hours of the library are 9:30 a.m. to 4 p.m. from Monday to Saturday. For the purpose of issue and return of books, it is restricted from 10 a.m. to 1 p.m. and then from 2 p.m. to 4 p.m. on all working days. You will be issued 3 borrower cards on which you can issue books. So the duration for the books will be for 7 days, and in case you fail to return it after 7 days, you will be charged ₹5 per day per book. In case of loss of library card or book, duplicate card will be issued on payment of ₹150. Reference book will be issued for 1 hour on card for a student member. Loss of book, if any, shall be reported to the library staff immediately, and it shall be replaced by another similar copy of the latest edition immediately. In case the borrower is unable to replace the lost book, twice the cost of the book plus due will be charged. So the college is also providing the book bank facility. A student can keep books for the entire semester. After external examination, student
student has to return the books to the library. And your law library in charge is Ms. Rekha Chaudhary ma'am. Every month, School of Law have planned different activities for you all. Founders Day comes Chairman Sir birthday celebration, BLLB, BPLLB first year students interactive session with Director General Sir, Independence Day celebration and kite flying, Orientation Day today itself, visit to National Museum for first year semester students, Freshers Party, CPJ Intra College Sports Meet, Teachers Day celebration and many more. So let us have a glimpse of what all other activities we have in our college. So this is the moot court. I hope everybody knows by now what is moot court. Moot court is a dummy court where you all can participate and enhance your advocacy skills. So our college keeps organizing moot courts on a regular basis. We have court, parliament and historical visits. Then we have debate competitions, judgment writing competitions, client counseling competitions. Then we have guest lectures and workshops. You can see as we have Mr. R.S. Goswami and then we have Professor Afzal Wani sir. We conduct regular PTM meetings on periodic basis so that your parents are also updated about your performances and your attendance in the college. We organize Diwali celebrations also. This is the Diwali Carnival 2018, the Ullas. We also celebrate other cultural events, Teachers' Day, Lohri celebration, Holi celebration. Law Fiesta is the National Law Festival for 2 days having 5 competitions as follows. National Conference, National Moot Court, Debate Competition, Judgment Writing and Client Counseling. Here are some links. Stay away from narrow-minded people. Those that bring you down keep good company. Eagles have an accurate vision. Have a vision and remain focused regardless of the obstacles and you will succeed. Eagles do not eat dead things, they feed on fresh prey. Do not rely on your past accomplishments, keep looking for new frontiers to conquer. Eagles love the storm. Achievers are not afraid of challenges, rather they relish them and use them profitably. When a female eagle meets a male eagle, she tests him for commitment. Whether it's your personal life or professional, one should test the commitment of the people intended for partnership. Eagles prepare for training. Leave your comfort zone, there is no growth there. When the eagle grows old, they hurt themselves for new feathers. We occasionally need to shed off the old habits, things that burden us or add no value to our lives should be let go. Thank you so much. और कुछ बहुमूल्य कीमती फैकल्टी जो आज हमारे बीच बैठी है वो मेरे को मेरे कॉलेज में ही थी। एक जो सबसे बड़ी इस कॉलेज ने चीज मेरे को जो दी है वो है वहां से यहां तक का सफर। आज मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं, जैसे कि गोस्वामी सर ने, अच्छा पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं, अगर गोस्वामी सर जब अपनी स्पीच दे जाते हैं तो उसके बाद ज्यादा बोलने के लिए कुछ बचता नहीं है। मैं हमेशा से यही सोचता हूं कि काश मेरा नंबर उनसे पहले आ जाए तो मैं भी अपने कुछ बात, अपना कुछ ज्ञान आप लोगों को दे दूं, लेकिन गोस्वामी जी अगर एक बार अपनी स्पीच दे जाते हैं तो वो कुछ नहीं किसी के लिए छोड़ते हैं यहाँ पर। तो मैं आप सब लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि सीपीजे में एडमिशन आपने क्यों लिया है? तो फ्रॉम द लास्ट रो द student sitting in green shirt, can you please tell me?
हाँ जी, प्लीज आप मेरे को बता सकते हैं आपने सीबीजे में एडमिशन क्यों लिया? पहले योगुट में हर्ष सोलंकी। हाँ जी सोलंकी जी, सीबीजे में एडमिशन क्यों लिया बताइए जरा। हाँ जी अलॉटमेंट में आया था काउंसलिंग में। अच्छा, अलॉटमेंट में आया था काउंसलिंग में, ओके। एनीवन फ्रॉम द सेकंड रो? हाँ जी हाँ जी, घर के पास है, ओके। Just here, anyone? With that girl, last विद्यार्थी with black, yes yes. So ready, आप अलॉटमेंट में मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। सीबीजे में आपका एडमिशन इसलिए हुआ है क्योंकि आप ये कॉलेज डिजर्व करते हैं। अगर कोई ये कहता है कि मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी डिजर्व करता था या मैं एमएनयू डिजर्व करता था या किसी वजह से मेरा नहीं हो पाया वहां, या आप यही कॉलेज डिजर्व करते थे, इसीलिए आप आज इस कॉलेज में हो और इसीलिए आप आज यहाँ पर बैठे हैं। दो चीजों के लिए हमेशा अपने आप को थैंकफुल समझना। पहली कि आपके इतने मार्क्स आए कि आप एलिजिबल हुए काउंसलिंग के लिए, और सेकंड कि सीपीजे ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप आए और यहां से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करें। जैसे कि मैं हर बार एक बात पे फोकस करता हूं, डॉक्टर और वकील आजकल घर घर में हैं। अभी गोस्वामी जी सर जब बैठे हुए थे तो हम बात कर रहे थे कि 10,000 वकील हर साल इनरोल्ड हो रहे हैं। डॉक्टर और वकील हर घर में है आज के टाइम, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप किसके पास जाते हैं? डॉक्टर। और लीगल फील्ड में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो किसके पास जाएंगे? कैसे लॉयर और कैसे डॉक्टर के पास आप लोग जाना पसंद करेंगे? एक्सपीरियंस, रिनॉन्ड, जिसका कुछ नाम हो, जिसमें कुछ काबिलियत हो, उसी के पास तो जाएंगे। तो अब ये देख लीजिए कि 10,000 लोगों में से आप कहां स्टैंड करते हैं। कब तक श्री जेठमलानी जी के नाम से अपने आप को आइडेंटिफाई करवाना चाहेंगे? कब तक किसी बड़े वकील के नाम से अपने आप को आइडेंटिफाई करवाना चाहेंगे? अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाओ कि यस आई एम गौरव एंड आई एम एडवोकेट, यस आई एम राहुल आई एम एडवोकेट, यस आई एम शालिनी, यस आई एम पूजा। अपनी खुद की आइडेंटिटी ऐसी बनाओ कि हाँ लोग आपको आपके नाम से जाने। आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। अगर आपकी सेल्फ कोई आइडेंटिटी नहीं है, अगर आप दूसरों के नाम से जाने जा रहे हो, अपने पेरेंट्स के नाम से जाने जा रहे हो, तो जेंटलमैन, जेंटल लेडी, सॉरी, फिर ये प्रोफेशन भी आपके लिए नहीं है। अब तक आपके लाइफ के डिसीजन जो हैं वो आपके पेरेंट्स, आपके गार्जियंस लेते थे, लेकिन अब जब आप यहाँ पर आ चुके हैं तो अब सिर्फ आगे के डिसीजन जो हैं वो आपको खुद अपने लिए लेने पड़ेंगे। कोई अब आपके डिसीजन आपके लिए लाइफ में नहीं लेगा। एक बहुत मैं किस्सा शेयर करता हूँ। जब मैं काउंसलिंग के लिए जा रहा था तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी 1-2 जगह एडमिशन हो गया था। तो आई वाज नॉट क्वाइट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ हमेशा, 60-40 के बीच में मार्क्स रहते थे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था किसी जगह, फिर मैंने लॉ का एग्जाम दिया तो 1401 मेरी रैंक थी। सीपीजे में मैं काउंसलिंग के लिए गया तो मेरे फादर साहब वाज कंपनी में, तो वो जब साथ थे तो एकदम से गार्ड ने उनको रोक दिया कि हाँ जी सर। तो उसने बोला अरे भाई बेटे का एडमिशन करवाने जा रहा हूँ। बोला सर बेटा करवा लेगा, बेटा करवा लेगा। वो दिन है और आज का दिन है, मैंने अपने लाइफ के डिसीजंस खुद लिए हैं। ना कहीं मेरे पेरेंट्स ने मुझे अकम्पनी किया, ना इवन दो आज तक मेरे फादर साहब ने ये कॉलेज तक नहीं देखा है। मैं अपने एडमिशन के बाद यहाँ पर आया भी खुद था, यहाँ पर एनरोलमेंट भी खुद कराई, हर चीज मैंने खुद यहाँ पर करी। कभी ऐसा मैंने मौका तक नहीं दिया उनको आने का कि कभी कुछ किसी भी कारणवश उन्हें यहाँ आना पड़े। तो यही मैं आप सब लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ आज कि अपने डिसीजन, अपनी आइडेंटिटी खुद क्रिएट कीजिए आप लोग। और ऑलरेडी काफी कुछ सबने कह दिया है तो ज्यादा कुछ है नहीं कहने के लिए। योगांग सर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना पड़ेगा। मैं बोर्ड पे भी देखता हूँ काफी बार बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं, मैंने टोका भी है, एक बार मैनेजमेंट से भी रिगार्डिंग बात की थी, तो आज अच्छा प्लेटफॉर्म है तो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा। अगर कॉलेज आपको यूनिफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है तो वो एक बैच
यहाँ पर आपको प्रोवाइड करता है जिस बैच पे कॉलेज का नाम लिखा है। वो कहीं पर भी बैच प्रोवाइड कर सकता था, यहाँ पर भी, पीछे कहीं पर भी, लेकिन पता है वो बैच आपके चेस्ट पे यहाँ पर क्यों होता है? क्योंकि वो पूरे कॉलेज की प्राइड है, और जो प्राइड होती है ना वो अपनी छाती पे लेकर घूमते हैं। और जब मैं ये चीज देखता हूं कि कोई बच्चा जीन्स में है, कोई स्लीपर्स में है, किसी का शर्ट प्रेस नहीं है, किसी का कोट प्रेस नहीं है, किसी के बाल खड़े हैं, किसी की इतनी लंबी लंबी दाढ़ी है, किसी के कानों में बाली है, और यहां पर क्या लिखा है? सीपीजे। मैं आपको एक्चुअल बताता हूं बहुत हर्ट होता है। ये आइडेंटिटी कॉलेज ने आपको दी है टू रिप्रेजेंट कॉलेज इन अ गुड सेंस। इस कॉलेज को हमने यहां से यहां तक जाते हुए देखा है। जब हम यहाँ 2009 में आए थे तो बहुत सी चीजें होनी थी, हमने कभी उनको क्रिटिसाइज नहीं किया कि ये चीज नहीं है, ये चीज, हम हमेशा उसका पार्ट रहे कि हाँ अगर ये कमी है तो हम कॉलेज के साथ मिलकर इसको सुधारेंगे और इसको हर दिन आगे लेके जाएंगे। तो मैं आप सब लोगों से यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म दिया है इस कॉलेज ने, योगांश सर है यहाँ पर, कोई भी बात हो, किसी भी तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम हो, मौला सर है यहाँ पर, आप बेधड़क जाइए। हमारे को आज तक कभी भी अगर हम किसी जेन्युइन कॉज के लिए गए हैं, हमने ना नहीं सुना इनके मुंह से कभी भी। कोई भी अगर जेन्युइन कॉज हुआ है, कभी भी सर से हमें निराशा नहीं मिली। हम अगर गए हैं तो हमारा वो काम हुआ ही है हमेशा। तो बस आपसे यही एक्सपेक्ट करता हूं कि इस कॉलेज को बनाने में बहुत से लोगों का योगदान रहा है, और आपसे भी यही दुआ करता हूं कि हर दिन इसको जितना ऊपर आप ले जा सकते हैं लेके जाइए। कॉलेज सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसकी पहचान आप सब लोगों से। तो मैं अपने शब्दों को विराम सिर्फ एक छोटी सी बात कह के देना चाहूंगा कि ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, कि ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप लोग मुझे जानते हैं, बस यही काफी है। कपिल भाई और मेरे साथ मेरे भाई अरुण भाई, मैं अपना छोटा सा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जब मेरा एडमिशन हुआ, सबसे पहले मैं ये बता दूँ, मेरा जो बैच था, मैं सबसे फर्स्ट बैच यहाँ से कॉलेज का जो सबसे फर्स्ट बैच था, 2008 में यहाँ पे लॉ स्टार्ट हुई, तब हमने एडमिशन लिया था। जब मेरा एडमिशन होने वाला था तो मेरा भी एडमिशन, जैसे विवेक ने बताया, मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी के सत्यवती कॉलेज में एडमिशन हो गया था, और सत्यवती कॉलेज में पोल साइंस ऑनर्स में मेरा एडमिशन हो गया था। और हमारे खून में ना थोड़ी सी नेतागिरी की खुशबू थी है। तो जब हमारा एडमिशन हो गया तो वहाँ पर भी मैं चुनाव की तैयारी कर रहा था, और मैं वहाँ पे सत्यवती कॉलेज से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहा था। सडनली मुझे भी कॉल आया कि मैंने देखा कि हमारा जो लिस्ट में नाम था नहीं आएगा, तो हमने सत्यवती में एडमिशन ले लिया। लेकिन सडनली कॉल आया, फादर का नंबर था उसके पास, शायद मेरा नंबर होता तो मैं बात खत्म भी कर देता। फोन आया कि भाई आपका लिस्ट में नंबर आ गया, आप आइए और आपका एडमिशन है यहाँ पर। तो जब वहाँ पर देखा मैंने लिस्ट में कि कॉलेज कौन से मिल रहे थे, कॉलेज थे, यहाँ पर सीपीजे था। तो उस टाइम दिमाग में सिर्फ एक चीज आई, सीपीजे, अरे आज जंगल में यार नरेला में, तो बहुत टेंशन से हो गई। वहाँ पर तो कुछ भी नहीं। जब हम यहाँ पर आए देखा तो सच में यहाँ पर कॉलेज के अलावा आसपास जंगल था। आज की डेट में तो बहुत डेवलपमेंट है यहाँ पर, लेकिन जब यहाँ पर आके देखा, यहाँ की जो फैकल्टीज थी, चीजें थी मिलने को, और माई इंग्लिश वॉज वेरी पुअर, आज भी खैर पुअर ही है, लेकिन ज्यादा सही, लेकिन उस टाइम बहुत ज्यादा पुअर थी। और मैं जब यहाँ पर आया तो मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती थी, यहाँ का स्टैंडर्ड बहुत हाई था, क्योंकि बच्चे शुरू से ही यहाँ के आए थे, हमने 2-4 को छोड़कर। तो हमने देखा कि यहाँ पर स्टैंडर्ड बहुत हाई है। तो आपको जैसे पीछे वाली रो में बच्चे बैठे ना, मैं भी वहाँ पीछे छुप करके बैठा था कि यार मैं छुप के बैठूंगा तो मुझे देख रहे, जैसे वो भाई नीचे ऊपर के बैठा ना, तो कि कहीं मुझे जब उठा ले, जैसे विवेक ने उठाया कभी मुझे उठा ले। तो हम भी ऐसे बैठे थे। जब बच्चों से बात हुई तो फिर हम देखा हमने कि थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ग्रुप मेरे जैसे थे, मैं उन भाइयों में शामिल हुआ। तो उन जैसे बच्चों में शामिल हुआ कि जहाँ पे इंग्लिश ना बोलनी पड़ी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब आप टच में आते हो तो सारी चीजें चलती चली आती है। मैं फर्स्ट सेमेस्टर में 1 में पास था, विवेक का तो मुझे पता नहीं। मैं फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ 1 में पास था, बाकी 6 में फेल था। लेकिन क्या था कि यहाँ पे इंटरनल्स वगैरह जो होते हैं, हम उनको बहुत मजाक लेते थे कि इंटरनल्स बहुत मजाक से है, कोई दिक्कत नहीं है, जो पास हो जाओगे तो हो जाओगे। 25 मार्क्स के इंटरनल होते हैं और 75 वहाँ पे एक्सटर्नल होते हैं। आज भी शायद यही चीज है। तो
इंटरनल्स में हम मार्क्स इतने काउंट नहीं करते थे कि भाई इतने अच्छे लेके आए कि एक्सटर्नल में हम जैसे बच्चे हैं ना वहाँ पे इंटरनल में अगर अच्छे रह जाए तो एक्सटर्नल में पास हो जाते हैं। तो उस टाइम हमने दी नहीं, फिर बैक्स आई हमारी, लेकिन धीरे धीरे ऐसे स्टेबिलिटी बनी कि हमारे 3rd सेमेस्टर से उसके बाद मेरी कोई बैक नहीं आई। अब धीरे धीरे अब जब पास आउट हुए यहाँ सर, तो फिर फील्ड में नए थे, ना मेरे कोई फादर ना मेरे कोई रिलेटिव में कोई एडवोकेट था। मैं वहाँ पे पहुंचा तो देखा सब कुछ नहीं है, जो किताबों में पढ़ के आए थे वहाँ पे बिल्कुल जीरो। प्रोसेस फी, सर्टिफाइड और चीजें जितनी भी थी इम्प्लीमेंट में, वो चीजें थी नहीं जो पढ़कर आए थे कि आईपीसी के सेक्शन ये कह रहा है, सीपीसी का ये कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल, कुछ नहीं, जीरो। वहाँ पे चीजें ही अलग थी कि सर्टिफाइड होती है, आप इसमें ये फाइल कराओ, ये चीज कराओ। 1 साल 1.5 साल जूनियरशिप में रहे, कहीं किसी के पास धक्के खाए, कभी किसी के पास धक्के खाए, फिर धीरे धीरे अपना काम स्टार्ट किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में मैं ये देखता हूँ कि जैसे सीपीजे के बच्चे हैं, हमारे कॉलेज की जो फैकल्टीज है, इस चीज के लिए मैं थैंक यू भी कहूंगा इन्हें कि ये खुद प्लेसमेंट देती है। 1st, 2nd, 3rd ईयर के बच्चे, जैसे विवेक ने बताया वहाँ पे सीपीजे का टैग लगा होता है, मैं भी देखता हूँ, मेरे पास भी बच्चे यहाँ आते हैं, तो वहाँ पे वो बच्चों को प्लेसमेंट देते, सीखने का शुरू से आपको आधार मिलता है। हमारे को तो बिल्कुल जीरो था, कुछ सीखने को नहीं मिला। हम वहां पर जाते थे, कभी किसी के पास, जैसे एक लाइक मुंशी होता है, हमने मुंशियों की तरह पहले काम सीखा है, उसके बाद खुद को डेवलप करा है, और सीपीजे ने हमें आज यहाँ पर पहुंचा दिया कि आपके बीच में ये मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी का चुनाव जीत करके बना हुआ है विवेक शोभी, और मैं आपके सामने वहां पर 30,000 रिकॉर्ड जो एशिया की नंबर 1 बार है, वहां से आज मैं ट्रेजरर का चुनाव लड़ रहा हूँ। ये सब सीपीजे की देन है। इसके अलावा मैं आपको ये चीज बताऊं, एक मेरी रिक्वेस्ट है सर से कि जितने भी सीपीजे के बच्चे होते हैं, आप मुझे, विवेक शोकिंग को, कपिल भाई बैठे हैं, इन सबको लिस्ट दीजिए, इन बच्चों को हमारे पास भेजिए, ताकि जो चीज की प्रॉब्लम हमने फेस करी है वो प्रॉब्लम ये लोग फेस ना करें। इन लोगों को हम हमारे पास ही आएंगे, हम इनको अच्छे अच्छे एडवोकेट्स के पास लगाएंगे ताकि इनको काम सीखने को मिले, और जब ये 5 साल बाद यहाँ से पास आउट हो और एनरोल्ड हो तो सीधा ये बेसिक चीजें सीखकर एडवोकेट के लिए तैयार हो। इसके अलावा मैं थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी से भी बिलोंग करता हूँ। जब तक मैं नारा नहीं मारता ना, मेरी जो अंदर की आत्मा है बूस्टअप नहीं होती। इसलिए भाई एक नारा मेरे साथ लगा दो, उसके साथ क्या मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू सो मच। ऑफ देयर लाइफ ऑफ गेटिंग द एडमिशन इन सीपीजे। मैं अपनी लाइफ में एक छोटा सा डिसीजन शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। मैं फर्स्ट ईयर में जब था, मेरी टोटल 14 बैच थी। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 7, सेकंड सेमेस्टर के अंदर 7। मेरे को आईटी यूनिवर्सिटी में 3 बैच लगा दी। तो उसके बाद मैंने हाई कोर्ट के अंदर एक रिट पिटीशन फाइल करी। आई मेट ए लॉयर, मैंने उनको सारी बात बताई कि आई वाज नॉट अवेयर अबाउट द ईयर बैच सिस्टम। 14 में से 14 में पेपर फेल हो गया। एंड लॉयर ने मेरे को देखा कि भाई 14 में फेल हो गया तो ठीक क्या है। तो मैंने रिट पिटीशन फाइल करी हाई कोर्ट के अंदर। वी वॉन दैट रिट पिटीशन। उसके बाद मैं सीपीजे के अंदर आया, मैं अस्थानगर से मिला। मैंने कहा सर मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम हो गई है कि मैंने 14 में से 14 बैक आ गया, मैं क्या करूँ। अब मैं ईयर बैक तो मेरे को लगा नहीं है, मैं सेकेंड ईयर के अंदर आ गया हूँ, बट अब मैं कैसे क्लियर करूँ। तो अस्थाना सर ने मेरे को स्ट्रेंथ दी। मैं युगांग सर से मिला, युगांग सर ने मेरे को स्ट्रेंथ दी कि बेटा देख तेरे से हो जाएगा, मेहनत कर, डिसिप्लिन ला, स्टे फोकस्ड, तू कर लेगा। मैंने सर की उस दिन वो वाली बात सुनी। धीरे धीरे मैंने सारी अपनी बैक क्लियर। फिर जब मैं फर्स्ट ईयर के अंदर मैंने ज्वाइन किया था कॉलेज, पापा मम्मी कहते यार तू तो बड़ा ठीक बच्चा है, तू वहाँ तक जाएगा कैसे। मैंने कहा पापा अब तो कोई ऑप्शन है नहीं, इतनी पीछे रैंक आई थी, मैं एंट्रेंस में भी नहीं पढ़ा, मैं 12th में भी नहीं पढ़ा, बट अब तो कोई ऑप्शन है। पापा ने कहा नरेला जाना बहुत डिफिकल्ट है। उस टाइम पे क्या होता था, ना पुल्स होते थे, ना रोड होती थी ऐसी, यहाँ पहुँचना 2 घंटे और लगता था। पापा ने कहा बेटा एक काम कर, बेस्ट में जुगाड़ लगाते हैं, वहाँ पे कोई एडमिशन लेते हैं। मेरे ख्याल यहाँ पे बाकी बैठे बच्चों के पेरेंट्स ने भी ऐसा कहा होगा, कोशिश करते हैं। कई लोग हाथ मेरे को पता उनके पेरेंट्स ने कहा है, लेकिन मैंने कहा पापा अब जो मिल गया है कोई बात नहीं। बट फ्रैंकली टेलिंग यू, जो मैं बिल्कुल बच्चा था, बिल्कुल जो कॉन्फिडेंस मेरे में नहीं था, आज मेरे में कॉन्फिडेंस है। आई एम अ गुड लॉयर। मैं हाई कोर्ट के सामने पेश होता हूँ, हाई कोर्ट के सामने दलीलें रखता हूँ, अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करता हूँ। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ चंद्र प्रभु जैन कॉलेज। इस कॉलेज ने मेरे को इतना कॉन्फिडेंस लेके आया। आज मैं जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। आई होप आई विल क्लियर द जुडिशरी एग्जाम, बट आज जो भी मैं कुछ हूँ इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉलेज। यही मेरे को कहना था। थैंक यू सो मच। तो आप लोगों से ये विनती है कि आप भी अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाएं,
स्टे फोकस्ड और आगे बढ़े और CPG का नाम रोशन करें जैसे हम लोग कर रहे हैं। थैंक यू। में राहुल ने जैसे शेयर करा, फिर विवेक ने बताया, साईं भाई ने बताया कि हमने मेहनत करी। स्टार्टिंग में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इस प्रोफेशन में आए हैं तो वो आप पहले कर लेंगे तो बाद में कम करनी पड़ेगी। बी फोकस, ऑलवेज सेटिस्फाइड, अपने मन में सेटिस्फेक्शन लेके आए। आप इस कॉलेज में आए हैं, आप इसका पार्ट हैं, इसकी रेपुटेशन आपके हाथ में है। इसकी रेपुटेशन खराब करेंगे तो आपकी रेपुटेशन अपने आप खराब हो जानी है। आपको इस कॉलेज का हिस्सा है, इस कॉलेज को अपना घर समझ के चले तो बढ़िया रहेगा। मैं भी एक किस्सा बताना चाहता हूँ। मैं 2008 में मैंने 12th पास करी, मेरा CPJ में एडमिशन हो रहा था। मैंने नहीं लिया कि बहुत दूर है, नरेला है, मैं नहीं जाऊंगा। 2009 में मैंने फिर एंट्रेंस दिया, फिर मेरी एडमिशन नहीं हुआ नरेला में। पर ये उस टाइम अच्छा था, उसे साइड बाई क्लास में 32 बच्चे हुआ करते थे और हमारे बैच में 80 स्टूडेंट्स थे। पर ये बेनिफिट मिला मुझे कि यहाँ हमारी क्लास में हमें स्ट्रेंथ मिली, ऐसे ऐसे दोस्त मिले अच्छे खासे। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि इस लाइन में बी पेशेंट, आराम से आप अगर अपनी ईमानदारी से काम करेंगे तो आप बहुत ग्रो करेंगे। थैंक्स। Respected DG sir, respected Professor Mawla sir, both the HODs, faculty members and alumni. Many things have been discussed: discipline, maintaining your day-to-day life, study. But I think the journey had started a 5-year course by the thoughts of the Professor Madhav Menon sir, because he has initiated the 5-year course coming to the NLS Bangalore, and now it has expanded to all over India. Very big thanks to the Professor Madhav Menon sir. And secondly, the chief guest who is not here, मैं चाहूँगा कि उनके एब्सेंस भी, बिकॉज उन्होंने ऐसा एक रिमार्क्स तैयार कर लिया है कि बिकॉज ही is the only person who has entered into the Guinness World Book of Record. A round of applause for him. Secondly, I must say a big thanks to the Director General sir and Professor Mawla sir, that who has taken time in a busy schedule. A big thank you sir. Both the HODs and faculty members, those who have worked to make this successful program, a round of applause for them. मैं चाहूंगा कि ये जितने भी एलुमनाई हैं एक बार अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं, इनके लिए जोरदार तालियों के साथ आप लोग स्वागत करें। क्योंकि कल जब साहिल बोले से बात हुई, ही वॉज नॉट वेल, और इसने बोला कि शायद सर मैं नहीं आ पाऊँ, लेकिन अपने इस बिजी शेड्यूल के बाद भी, तबीयत खराब होने के बाद भी ये सभी लोग आए। और a big thank you to all my dear students. Last, for you also a round of applause, because patiently you have listened all the things. A round of applause. इन सभी चीजों को मैंने बहुत देर से सबको सुना, इवन गोस्वामी सर को भी, विवेक शफीन, डीजी सर, इन सारी चीजों का एक छोटे से जस्ट में मैंने उतारा है। ये आप लोग भी शायद सुन के खुश हो गए। सुन परिंदे हौसला कायम, सुन परिंदे हौसला कायम उड़ान में रखना, हर एक निगाह तुझी पर है, हर एक निगाह तुझी पर है, इसे ध्यान में रखना। बुलंदियां तेरी हिम्मत को आजमाएंगी, बुलंदियां तेरी हिम्मत को आजमाएंगी, परों में जान और नजरें आसमान पे रखना। बहुत बहुत धन्यवाद।